Hello guys, welcome to the channel of TCP/IP. Today we are going to discuss about the concept of subnetting in IP address, classical IP addressing. So before this, we have discussed about the classical addressing, what are number of classes are available, what is their size, what are the host ID, what are the net IDs, how many number of host ID can be possible, net ID can be possible, and we can calculate the total size of that particular block. Okay. So now here the subnet. What is it? What do you mean by subnet? And before discussing about the subnet, why this subnet is required? So first point to discuss about subnet, to enhance the security of network. To enhance the security of network, what if we divide this big network into small sub-networks, it is going to be very easy to handle. So security can be improved over the subnet. Second will be to save the IP address loss. As we know that there is in class A, class B, and class C. In class A and B, there are a lot of IP addresses going to be best because in each block, 2 to the power 24 blocks, and let's say 2 to the power 16 and 2 to the power 8, as accordingly, these number of IP addresses are going to be available. So that's going to be best. Third will be to easy to maintain. If you divide the total space into different subspace, so that will be easy to maintain. To increase the routing efficiency, because router, we know that router is what device which is used for the selecting a best path. So it is going to be very easy to analyze the small information to route that particular packet from the network 1 to network 2 or subnet 1 to subnet 2. And then fourth will be next will be to reduce the size of the broadcast domain. If we have a single large domain, that time the collision will be very high. So in broadcast domain, so if the size of the network subnet is very low, so broadcast collision domain will be very low. Okay, so these are the reasons. For these reasons, we need to understand the subnet. Let's take an example. There is a network, very big network. Let's say this is what the big network. And if you go with this network, but what happens generally in one particular organization, there are different sub portions or sub departments are available. If we talk about the college, so there is exam section, there is account section, there is a placement section, there is a store section. So these are the sections available. If you go give the directly IP address to the subnets as like a classical addressing, so it is going to be very wasteful. There is going to be IP address is going to be west. So it is better to divide the small areas of the one organization so that the IP address is going to be set. Now, what is the definition of subnet? So this is the process of breaking single network into multiple subnetworking, which is commonly called as subnet. Which means what? If you have big network, उस network को हम छोटे से हिस्सों में बांटना is what the subnet. And a subnet or a subnet is a networking within a subnetwork. Subnet within a subnet is what in networking. Or we can say हम उसको बहुत ही फाइन ट्यून करके और डिवाइड कर सकते हैं. Subnets allow more powerful network. Network traffic can travel shorter distance by subnetting without passing by redundant router to each others. So डिस्टेंस भी हमारा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, रिडंडेंट नेटवर्क भी कम और रिडंडेंट ट्रैफिक भी कम हो जाएंगे क्योंकि हम रिस्ट्रिक्टेड जोन रहेंगे छोटे छोटे, तो दूसरे के पैकेट्स हमारे सबनेट में आएंगे नहीं. तो दीज आर द definition of the subnet. Now, if let's say what happened if our requirement is of 25 hosts, so we may apply the class C because we know that 2 to the power 8, 256 values can be available in one network. Okay, so here which gives the 254 valid IP address, out of which only 25 out of which only 25 will be utilized and other IP goes west. So if we talked about this class C's concern, guys, we know that class C में हमारे पास कहीं ना कहीं लास्ट का ऑप्टेट होता है जिसमें होस्ट कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट कितने ओनली 25 होस्ट की रिक्वायरमेंट है. तो 25 होस्ट की रिक्वायरमेंट है और हमने क्लास सी भी ले लिया, तो उसमें से 254 माइनस 25 अगर करते हैं, सो रिमेनिंग आईपी एड्रेस विल बी वेस्ट reduced or unused, we can say. So it is better to have subnet. मतलब क्या हमारे requirement 25 computers की 25 कंप्यूटर के हिसाब से ही हम हमारे subnets को डिजाइन करें. For example, let's say, then how it is going to be happen. Let's say if there are two subnets, subnet 1, let's say, let me brush out this section, and let's say this is what the one network is divided into two parts. Okay, the first part is what 192.168.1.0 up to 127. So 0 to 127, this is one network. The second is what 128 to 255, 128 to 255. Now here, let's say if any packets come from other network, दूसरे network से packets आ रहे हैं. Let's say दूसरे network से packet आ रहे हैं for the IP address. Given IP address is what 1.16.
सो ये आईपी एड्रेस हम रूट कैसे करेंगे कि ये किस पर्टिकुलर सबनेट को बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास छोटा सा ऑपरेशन है। एंड व्हाट ऑपरेशन? दैट ऑपरेशन इज व्हाट द एंडिंग ऑपरेशन। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Whatever the IP is available, that is what 192.168.1.16. So here is a 16 is IP address that of that host. अभी 16 IP address इसमें से कैसे होगा? इसमें से सबसे पहले हमारे पास जो कि सबनेट का साइज है 0 to 127, इस 128 तक साइज जो है, इसके साथ उसकी एंडिंग होगी। So let's say 1 7 times 0 and the address of the host, it which means this is the value. Okay, which means what? This value. So it means what? This belongs to the subnet 1, subnet 1, because this is what subnet 1 and this is what subnet 2. Let's say in the second address comes 192.168.1.34. So operation will be that's value 134. So 134 के binary position हमारे पास ये वाली है. This one, that is 10001100, which is going to be ended with the available value of the subnet, and it means what? The value will be get what we have, this portion. So here this will be 128. So 128 is what? Plus subnet 2. And if the value is what, let's say here is with, then let's say 0 यहाँ पर अगर है, which belongs to subnet 1. क्योंकि ये 0 to 127 यहाँ तक है, तो 127 कहाँ से आते हैं? यहाँ तक की 127 वैल्यू हो जाती है. So this will be belongs to the this one. So यहाँ पर कोई डाउट नहीं कि कोई भी बाहर से नेटवर्क के टॉपिक आएगा, वो भी हम कहीं ना कहीं किस सेक्शन में जाना चाहेंगे. लेट्स से एग्जाम सेक्शन के लिए आया है, अकाउंट सेक्शन के लिए आया है, स्टोर सेक्शन आया है, प्लेसमेंट सेक्शन के लिए आया है, तो हम यहाँ पर उसको वर्कआउट कर सकते हैं. So this is what the idea about the subnet. Now more about, let's say, subnet mask. Let's say, what do you mean by subnet mask? Subnet mask is like a IP address, but only for internal network use. Internal network use मतलब वो खुद नेटवर्क के अंदर यूज होने वाली चीज है. Router use subnet mask to route the data packets to the correct location. राउटर एनालाइज करता है जो पैकेट्स आए हैं उस पर्टिकुलर होस्ट के लिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ सबनेट मास्क वो उस सबनेट को सबनेट के हिसाब से वहां उस होस्ट के तक वो पहुंचाएगा. Then subnet masks are not seen in internet traversing data packets. Such packets only represent the IP address of the destination which router matches with the subnet. So जिस किसी को भी वो मैचेस हो जाएंगे उसको पर्टिकुलर वो सेंड किए जाएंगे. In simple word, there is always value which is associated with the IP address, which tells that which parts of IP belongs to network portion and which belongs to the host portion. So this is what the best definition of the subnet mask. Okay, generally this all users follows this definition. The subnet mask is a number that define the range of IP address available within a network. This also definition. Here, how to calculate this one? Let's say subnet mask should be contiguous, and let's say that is 3. There must be proper on bit and there must be proper off bit. It's supposed to be contiguous. Let's take example 255.255.255.0. It is valid subnet mask. But if you calculate, let's say 255.255.0.255, it is not valid subnet mask. And there are some default subnet masks as far as the classes are concerned. What we are discussing about the classful addressing subnetting. So class A 255.0.0.0. This is the default subnet mask. Class B 255.255.0.0 and class C 255.255.255.0. This is default. Why default so? Because we know that in class C these number of belongs to the net ID, and the last will be your host ID. Class B दो ऑक्टेट होते हैं, class A में एक ऑक्टेट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. Okay, and if you go with the diagram, here there is a variable requirement, guys. Let's say there are 5 subnets are there. This network में हमारे 29 होस्ट चाहिए, इसमें 28 होस्ट चाहिए, इसमें तो 2 ही IP एड्रेस चाहिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं let's say 27 IP एड्रेस चाहिए, यहाँ पर 20 एड्रेस चाहिए. तो हर किसी का नेटवर्क अलग अलग है, लेकिन वो सीक्वेंस में ही जाएंगे. यहाँ पर हम बोलेंगे 192.168.1.0 से लेकर जाएंगे, तो दूसरों में एक में 32 अगर है तो यहाँ पर 32 तक जाएंगे, 96 तक जाएंगे, 64 तक जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ पर हम जाने वाले हैं. ओके, देखते हैं आगे वर्कआउट कैसे होता है ये. Let's take example subnet mask. Let's take example. Example is very simple, guys. Example, our requirement is of 2 subnet. एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 सबनेट चाहिए एंड एक सबनेट में 125 होस्ट चाहिए. So derive the subnet mask. Subnet mask को derive कैसे करेंगे? With the class C subnet mask, when there are 8 bit off, we get 255 host. So to get 125 IP address, we need 7 bit as off right side, because okay, यहाँ पर ये calculation ऐसे है 1 2
3 4 5 6 7 8, एक ऑक्टेट की वैल्यू हो गई 8 बिट। ये ऑक्टेट की वैल्यू अगर करते हैं तो 2 टू द पावर अगर हम 8 करते हैं सो इट विल बी 256 वैल्यू गाइस। तो इतने होस्ट अगर चाहिए तो पूरे के पूरे हमारे पास ऑन रखने पड़ेंगे, लेकिन हमारे पास कितनी रिक्वायरमेंट है 125 की। 125 में से हमें वर्कआउट करने के लिए कितने बिट लगेंगे, ये बिट लगने वाला है, सेकंड बिट नहीं लगेगा, थर्ड बिट नहीं लगेगा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां बिट नहीं लगेगा। सो ओनली टू द पावर दिस विल बी फर्स्ट वन विल गेस द वैल्यू। यहाँ पर जो बाइनरी बिट वैल्यू है वो हमें कहीं ना कहीं उतने नंबर ऑफ एड्रेसेस दे सकता है। तो लेट्स से वर्कआउट कैसे करते हैं, बाइनरी नोटेशन में कैसे करेंगे। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क हमारा क्लास का है 255.255.255.0। इसको हमारे पास दो सबनेट चाहिए और 155 होस्ट चाहिए। उसको वर्कआउट करने के लिए बाइनरी नोटेशन में देखो, ये पहले 3 ऑक्टेट तो हो गए, ये बाय डिफॉल्ट नेटवर्क आईडी इसको डिफाइन कर रहे हैं। अब इस सबनेटेड पोर्शन का देखो, इस 8 बिट में से हमें सबसे पहले एक बिट की वैल्यू ही ऑन है, दिस इज व्हाट ऑन बिट एंड दिस आर अबाउट ऑफ बिट। सो हियर यहाँ पर करते हैं तो हमारे पास 128 इसकी वैल्यू होती है, उसके पहले 64 होती है, उसके पहले 32 होती है, ऐसे चलते 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 कहीं ना कहीं हमारे पास 1 तक होती है। तो ये बाकी के बिट पूरे हैं ऑफ टू द पावर 7, और ये लास्ट वाला जो है 128 निकलेगा यहाँ से, तो ये सबनेटेड पोर्शन हो गया और लास्ट वाले होस्ट पोर्शन हो गया। तो हमारे पास 2 टू द पावर 1 अगर करते हैं, लेट्स गाइस डेसिमल को इसमें यहाँ पे करेंगे तो 25/25/25/124, ओके, इज गोइंग टू बी 124। नाउ फिर यहाँ पर वर्कआउट करेंगे नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स ऑन बिट्स कितने हैं, तो 2 टू द पावर 1 2 सबनेट्स आएंगे, 2 सबनेट्स आएंगे। तो 2 सबनेट्स आने के बाद यहाँ पर 124 नहीं, यहाँ पर इज गोइंग टू बी 128 होना चाहिए गाइस, 128, ओके। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने आएंगे, जितने बिट ऑफ है उतने बिट को हम पकड़ना पड़ेगा। मतलब ऑफ बिट हमारे पास कितने हैं 7 है, तो मान के चलो 2 टू द पावर 7 -2, ये -2 जो है 2 आईडी जनरली ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क आईडी को माइनस करते हैं, तो 128 - 2, सो 126 वैलिड आईपी एड्रेस विल गेट, ओके। तो हमारे पास दो की रिक्वायरमेंट थी, दो सबनेट की रिक्वायरमेंट थी, तो दो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक बिट काफी है गाइस, 2 टू द पावर 1, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला है, तो दो सबनेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी, ओके। ये डिफॉल्ट सबनेट पास हमने ले लिया, उसके ऊपर से ये कैलकुलेट करना चालू कर दिया। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओनली एनालाइज की आवर रिक्वायरमेंट, कितने सबनेट चाहिए और कितने होस्ट चाहिए सबनेट में। तो इसके हिसाब से जो ऑक्टेट जो आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस का क्लास कौन सा है, उसके हिसाब से हमें वही चेंजेस करना है जिसमें हमारे पास होस्ट आईडी थे या होस्ट के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर क्लास सी के बात कर रहे हैं, तो लास्ट वाला ऑक्टेट हमारे पास अवेलेबल था, उसी को हम डिवाइड करेंगे, उसमें से एक सबनेटेड पोर्शन होगा, एक होस्ट पोर्शन होगा, और ये किसके ऊपर डिपेंड होगा कि कितने आईपी एड्रेस चाहिए और कितने नेटवर्क आईडी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास कितने सबनेट चाहिए, यहाँ पर 2 सबनेट की बात कर रहे थे हम, यहाँ पर इतनी यूज होने वाले। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल गाइस, सेकंड एग्जांपल में हम और क्लियर करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए कहीं ना कहीं 5 सबनेट चाहिए और 29 होस्ट चाहिए, एक 5 सबनेट चाहिए और 29 होस्ट चाहिए। मतलब क्या, एक ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लेट मी प्रेस दिस बिकॉज़ वी आर ट्राइंग समवेयर एल्स। लेट्स से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन में ये 2 सबनेट हो गए, ये 4 हो गए और ये 5 हो गए, 5 सबनेट हो गए। एक 5 सबनेट में हर किसी सबनेट में 29 कंप्यूटर कनेक्ट होने चाहिए। तो 29 कनेक्ट कंप्यूटर होने के लिए हमारे पास अभी वर्कआउट करना पड़ेगा। सो विद द क्लास सी सबनेट मास्क देयर विल बी 8 बिट ऑफ, ओके। सो क्लास सी वाला जो है हमारा लास्ट वाला पोर्शन ऑक्टेट, उसी को हम पकड़ लेंगे। तो वी गेट 255 होस्ट आईपी, ओके। इसको पकड़ेंगे तो 255 आईपी एड्रेस मिलेंगे। सो वी इन ऑर्डर टू गेट 29 वी रिक्वायर्ड 5 बिट्स। अभी हियर वी रिक्वायर्ड टू एनालाइज कि जितने सारे होस्ट चाहिए वो किस रेशियो से आएंगे, ये हमें एनालाइज करना है। तो सबसे पहले वर्कआउट करते हैं सबनेट मास्क। बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.255.255.0 क्लास सी का। बाइनरी नोटेशन को उसमें करते हैं तो 255 ऑल 1, 255 ऑल 1, 255 ऑल 1, तो ये सबनेटेड पोर्शन हो गया। अभी हमारे पास ये नेटवर्क पोर्शन हो गया। अभी सबनेटेड पोर्शन वर्कआउट करना है, तो लास्ट वाला जो ऑक्टेट हमारे पास है उसको हमें अभी वर्कआउट करना है। ये किसके ऊपर से करेंगे, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे, 5 ये वाली और 29 ये वाली। अभी 5 सबनेट चाहिए, तो 5 सबनेट चाहिए, उसके पहले कितने होस्ट चाहिए हमें देखना पड़ेगा। तो होस्ट की अगर वैल्यू करते हैं, लेट्स से 2 टू द पावर 1, आंसर आएगा 2, 2 टू द पावर 2 करेंगे, आंसर आएगा 4, 2 टू द पावर 3 करेंगे, आंसर आएगा 8। सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं। तो
टू द पावर 4 करेंगे आंसर आएगा 16, इससे भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमारे पास टू टू द पावर 5 करेंगे तभी जाके आएंगे वैल्यू 32 एंड विच इज व्हाट 32, ये वैल्यू आएंगे 32 विच इज नियर अबाउट टू 29। ये रेशियो फिक्स रहेगा हमारे पास, तो 16 को भी नहीं फॉलो कर सकते, 8 को भी नहीं, 4 को नहीं, 2 को नहीं। तो ये टू टू द पावर 5 जो वाला है ये बेस्ट सुटेबल है। तो 32 में से अगर माइनस करते 29, यहाँ पर मिनिमम 3 आईपी एड्रेस बेस्ट जाएंगे, तो ये चलेगा क्योंकि हम यहाँ पर यही बेस्ट कॉम्बिनेशन है हमें उसको यूज करने का। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सब नेटवर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइस? सो टू द पावर 3 बिकॉज टू द पावर यहाँ पर कितने 5 सबनेट चाहिए, टू द पावर 3 क्यों ये 3 क्योंकि ऑन बीट है। तो यहाँ पर 8 है, 8 सबनेट बनेंगे और हमारे पास होस्ट कितने चाहिए थे, होस्ट चाहिए थे 29। तो 29 को वर्कआउट करने के लिए ये 3 प्लस 5 हो जाएंगे 8 टू द पावर 5 32 आएगा, उसमें से 2 माइनस करना है, 2 माइनस किसके लिए करना है, वन नेट आईडी को करना है और दूसरा ब्रॉडकास्ट को करना है। ये 30 वैलिड आईपी एड्रेस हमें यहाँ पर मिलेंगे और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी 29 की, तो चलेंगे ओनली वन आईपी एड्रेस गोइंग टू बी बेस्ट। लेकिन हमारे पास अगर टू द पावर हमने 6 किया रहता है तो हमारे पास कहीं ना कहीं 64 आईपी एड्रेस मिले थे, 64 माइनस 2 62, तो इतने सारे आईपी एड्रेस वेस्ट गए रहते थे। हमने बेस्ट सुटेबल एग्जांपल लिया यहाँ पर वर्कआउट करने के लिए टू द पावर 5 जिसमें 32 आईपी एड्रेस आएंगे और उसमें से 2 अगर माइनस भी करते हैं तो हमारे पास 30 आईपी एड्रेस हमारे पास मिलने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजीएस्ट वन गाइड। हमें यहाँ पर वर्कआउट करना है कि नंबर ऑफ सबनेट कितने चाहिए, नंबर ऑफ होस्ट कितने चाहिए। होस्ट के हिसाब से सबसे पहले राइट मोस्ट से हम राइट मोस्ट से चेक करते जाएंगे, राइट मोस्ट से चेक कर जाएंगे कौन सा टू द पावर का रेशियो हमारे पास फीड होता है, उसके हिसाब से हम उसको एनालाइज करेंगे और वही लेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग वाली होती है वो नंबर ऑफ होस्ट लेंगे। अभी रिक्वायरमेंट थी 5 सब नेटवर्क की, लेकिन 5 सब नेटवर्क बनाएंगे तो उसमें 5 सब नेटवर्क में आईपी एड्रेस ज्यादा रहेंगे, आईपी एड्रेस ज्यादा रहेंगे, लेकिन वो हमें वेस्ट नहीं करना है। हमारे पास तो वही मिनिमम वेस्ट होना चाहिए, तो वो वर्कआउट करने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं ये काम है। But here some इसके disadvantage कुछ है। Disadvantage of the sub networking is what this activity is time consuming actually guys. This activity is what time consuming, but is okay. Time consuming है, वन टाइम करने के बाद एक नेटवर्क में वो कहीं ना कहीं यूज होती है, तो हमारे पास बाकी के आईपी एड्रेसेस हमें वेस्ट होने से बचाया जाता है। ओके, यहाँ पर हमने ये चीज पढ़ी। इसको वर्कआउट करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड टेबल है गाइस। ये स्टैंडर्ड टेबल में हमें सबसे पहले वर्कआउट करना पड़ेगा। टेबल में क्या रेशियोज है, टू द पावर 1 टू द पावर 2 टू द पावर 1 इज व्हाट 2 देन 4 देन 8। ऐसे वर्कआउट करते करते हम यहाँ तक जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ होस्ट हमें चाहिए, उसके हिसाब से हम उसको वर्कआउट करेंगे। तो ये जो टेबल है हमें टेबल को फॉलो करना पड़ेगा टू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नंबर ऑफ subnets and required host IDs. Okay, so I hope this is okay with you. If you go with the previous slides, how to calculate subnet mask. So subnet mask calculate कैसे होगा? Here only contiguous value will be there. So contiguous IP address होना जरूरी है, contiguous subnet mask होना जरूरी है। तो जितने नंबर ऑफ बीट्स ऑन है उतने नंबर का होगा हमारा सबनेट मास्क। तो यहाँ पे देखो 255 255 और 255 224। ये 224 कैसे आया? ये 3 बिट है, यहाँ पे 128 वाला हो गया, 64 32, इनको मिला के 224 हो गया। यहाँ पर ये वैल्यू होगी। इसके पहले के डायग्राम में हमने देखा था, इसके पहले के डायग्राम में यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक थी, 24 नहीं, ये 128 था, ये 120 255 255 255 128। I hope guys the concept of subnet mask and subnetted portion is okay with you guys. Thank you.